registering feedbacks and giving complaints, and also sharing their views on their travel through Twitter. This will be available on Android platform. Namaskar. With great pleasure, we welcome you all to the inaugural ceremony of Integrated Mobile App for Indian Railways by Honorable Minister of Railways, Shri Suresh Prabhu. Currently, there are multiple mobile applications by Indian Railways to cater various passenger requirements, including on-board cleaning. Most of the app cater to one service. To use different services, users need to search and download each application separately. In order to provide better customer experience, there is a need for integrated application, which will give a single window interface for these services. App is developed by Center for Railway Information Systems. This app can be downloaded free of cost from Google Play Store. Now, a brief demo of app. Existing users of unreserved and reserved ticketing app can log in using existing credentials. New users can register in application by clicking register button in login screen. After successful login in app, main menu shows 4 options: ticketing, enquiry, affiliated services, feedback. Ticketing services comprises of reserved ticketing and unreserved ticketing. For reserved passengers segment, Chris has integrated IRCTC Rail Connect app. This app provides one-step login facility for existing users. New users can register from the app itself or www.irctc.co.in website. Passenger can book reservation, search for trains, check ticket availability, and cancel their tickets from app. Presently, more than 1 lakh tickets are booked daily. For unreserved passenger, UTS on mobile app has been integrated. This is available in entire suburban section of Indian Railways and few non-suburban sections of Northern Railways. A zero-value R wallet is created on registration and the same can be recharged through app, website or at UTS counter. Recently, an option has been given wherein ticket can be booked through app and the ticket can be printed through ATM at originating station. Tickets can be booked through various payment options like R Wallet, Paytm, and MobiKwik using credit cards, debit cards, or net banking modes. Enquiry has 4 services: seat availability, fare enquiry, train running and PNR inquiry. Seat availability service is provided via web link wherein passenger can check seat availability in trains for planning journey by entering train number, journey date, station, etc. Fare enquiry service is also provided via web link wherein passenger can check fare for journey based on train, source, destination, class, etc. Passenger can check booking status using the PNR number printed on the ticket through a web link. National Train Enquiry System (NTES) app has been integrated which facilitates passenger to get information about train running. Now, a new map feature has been added in this app so that passenger can check real-time location of train. Affiliated Services has 4 services provided by IRCTC. IRCTC AIR provides facility to passengers to book flight tickets. IRCTC Catering. Food on Track allows passengers to order food online and choose from 500 plus restaurants while traveling in train and get it delivered on berth. Tour booking enables passengers to book tickets for a tour through IRCTC Tourism.
Retiring room services allows passengers to book retiring rooms online. This service is provided via web link. Feedback has three services: complaint or suggestions, Clean My Coach, and feedback on Twitter. Complaint Management System app enables passengers to register as well as track their complaints for the inconvenience faced while availing various services of Indian Railways. It also allows passengers to provide suggestions for improvement. A new feature for making call from the app itself has been added. App now provides option to directly dial 138 number in case of any complaint or suggestion and dial 182 in case of security matters. Using Clean My Coach app, passengers can request for cleaning of coach, watering of coach, etc. while traveling. Feedback on Twitter. A link has been provided wherein passenger can tweet his suggestion or feedback through existing Twitter handle. This app integrates various apps and provide additional features and fulfills Railway's commitment towards providing better services. It provides end-to-end service to our esteemed passenger, from planning of journey to giving their feedback after completion of journey. I now request Honorable MR to formally launch this mobile. As you have seen, railways have made every effort to bring every aspect of train journey from the time of booking till the time of travel to be brought under one single app so that the journey can be pleasantly exercised through one single option. Now, I request Honorable MR to kindly share his views. मेरे साथी एवं मित्र राजेंद्र गोयल जी, जमशेद जी, यहाँ पर मौजूद हमारे सभी साथ देने वाले कॉर्पोरेट सेक्टर के सभी सदस्यगण, जबलपुर में मौजूद हमारे मित्र सांसद राकेश सिंह जी, राकेश सिंह जी दिखाई दे रहे, अंचल सोनकर जी विधायक जी, अशोक रोहानी जी विधायक, श्रीमती स्वाति गोडबोले मेयर, डॉक्टर दिखाई नहीं दे रहे, डॉक्टर गोडबोले जी, और यहाँ पर मौजूद सभी हमारे हमेशा साथ देने वाले मीडिया के साथीगण और बाकी सब रेल परिवार से जुड़े हुए भाई और बहन। तो सबसे पहले मैं, क्योंकि जबलपुर थोड़ा दूर है, इसलिए उनके सभी साथियों को धन्यवाद देता हूँ। जबलपुर में एस्केलेटर की शुरुआत हुई है। कुछ पिछले 2-3 सालों में हम लोगों ने लगातार ये कोशिश की है कि किस तरह से ज़्यादा सुविधाएं लोगों को प्रदान की जाए। इसमें पानी के लिए सुविधा दी जा रही है, खान पान सेवा अच्छी तरह से सुधार दी जा रही है, साफ सफाई में भी काम हो रहा है, पेट्रोल्स में भी, लिनन के लिए भी काम हो रहा है। उसी तरह से एस्केलेटर भी हर जगह पर लगाने की शुरुआत हुई है। ट्विटर की अब वाईफाई की सेवा भी दी जा रही है। तो इसलिए जबलपुर जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेशन है और उससे एक अच्छे सांसद चुने गए हैं राकेश सिंह जी, और अच्छी मात्रा में काम भी अच्छा करते हैं। हमारे व्हिप भी है पार्लियामेंट में, अभी आपके हाथ में व्हिप नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन काफी अच्छी मात्रा में सभी को शिस्त लगाने का काम भी करते हैं, तो उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ ही में आज
बहुत सारी अलग कार्यक्रमों की शुरुआत हुई है। इसमें से जो मैं सबसे लास्ट में जो शुरुआत हुई, मैं उसको प्रथम उसके बारे में जिक्र करना चाहूँगा कि बहुत सारे समय से लोगों की पहले तो शिकायत हुआ करती थी 3 साल पहले कि शिकायत कैसे करें मालूम नहीं है, यही शिकायत रहती थी। मेरे पहले शिकायत होगी खान पान सेवा के बारे में, ट्रेन लेट आई उसके बारे में, किसने अच्छा बर्ताव नहीं किया उसके बारे में, लेकिन वो बाद में भूल जाते थे। वो बोलते थे हमारी शिकायत है कि शिकायत हम दर्ज नहीं कर पाए, तो यही शिकायत बन जाती थी, यानी बाकी शिकायत सब दूर रहती थी। तो हमने कहा कम से कम शिकायत दर्ज करने के लिए आपकी शिकायत ना आए, इसके लिए हम पहले कोशिश करते। और इसीलिए हम लोगों ने काफी समय से ट्विटर या अन्य माध्यमों से सेवा शुरू की। फिर हमारे अनुभव हुआ कि बहुत सारे माध्यम होने के कारण भी लोगों को तकलीफ आ रही है, क्योंकि आपके साथ संपर्क करने के लिए अलग अलग माध्यम होंगे तो भी लोगों को एक तकलीफ होती है। तो इसलिए मैंने बजट में कहा था, बजट स्पीच में, कि हम एक इंटीग्रेटेड ऑल इंक्लूसिव ऐप बनाएंगे और वो लोगों की सुविधा के लिए रखेंगे। उसमें सभी चीजें होंगी, शिकायत करने के बारे में, सेवा लेने के बारे में, कुछ सुझाव देने के उसके बारे में। और यहाँ पर तो अभी क्योंकि ये हमारी नंदा जी अभी इस क्विज को देख रही है, तो शायद महिलाओं की सुरक्षिता के बारे में भी हम लोगों ने इसमें काम किया है। तो एक बटन दबाकर, सिर्फ बाय जस्ट नॉट इवन बटन, बाय जस्ट टचिंग अ स्क्रीन यू विल बी अलर्टिंग द एंटायर सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट। तो दीपाली जी आप भी खुश रहिए। तो इसके लिए एक टच स्क्रीन के द्वारा सभी को एक अलर्ट किया जाएगा कि महिलाओं की सुरक्षितता लोगों को किस तरह से दी जाए। तो ये भी एक इसमें ही प्रावधान रखा गया है। तो मैं मानता हूँ एक काफी अच्छा ऐप बना है। हमारे कहना नहीं है कि इससे भी और नहीं हो सकता, जरूर हो सकता है। आपके कोई सबके सुझाव आएंगे तो हम उसके ऊपर, इसके लिए सुझाव के लिए भी काफी हमने प्रावधान रखा है। और हम विल रिविजिट इट एवरी मंथ टू फाइंड आउट कि और क्या सुधार किए जा सकते हैं। और एक इसलिए हर वीक में, हर महीने में या हर वीक में भी शुरू में हमारी ट्रैफिक डिपार्टमेंट, हमारी जो सर्विस डिपार्टमेंट है और क्रिस, उनकी एक मीटिंग की जाएगी ताकि हम जल्द से जल्द और सुधार करके उसमें वी कैन मेक इट ऑलवेज अपग्रेडिंग इट ऑल द टाइम। साथ ही में आज हम लोगों ने कोच गाइडेंस सिस्टम जबलपुर में उसके भी शुरुआत की है। और प्रमोट रोल टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए विदेश से जो लोग आते हैं उनको हमेशा एक चिंता रहती है कि लास्ट मिनट में टिकट, तो हमको भी भारत में रहने वाले लोगों को ये आदत हो गई है कि ट्रेन पे जाके, स्टेशन पे जाके उनकी टेक्नोलॉजी उनको मालूम है किसको पकड़, कौन को किसको मिल जाएंगे तो टिकट मिल जाएगी। तभी वो हम कम कर रहे हैं, लेकिन ये आज स्थिति है कि किसने किस तरह का कोट पहना है उसको जाके मिल लीजिए ताकि टिकट मिल जाएगी। इसके लिए हम यूनिफॉर्म भी हम चेंज कर रहे हैं। तो इसके लिए जो पहले जो आदत थी ये कलर के कोट पहनने वाले को टिकट मिल जाएगी, वो भी दूर हो जाएगी। लेकिन विदेश से जो लोग आते हैं उनके लिए प्लानिंग बहुत पहले से करते हैं। तो हमेशा उनकी एक सुझाव रहा है, शिकायत भी रही है कि लास्ट मिनट में हमको टिकट नहीं मिलते, हम यहाँ आते हैं देश देखने के लिए। तो इसीलिए एक नई सुविधा दी जा रही है, 1 साल पहले आप आपका टिकट बुक कर सकते हैं। और साथ ही में उनके लिए सुविधा देने के लिए आपने भी देखा बहुत सारी चीजें की गई है। और एक दिव्यांग लोगों की एक शिकायत हमारे सामने कुछ दिन पहले आई थी। एक हमारी अच्छी एथलीट को बहुत दुर्भाग्य से सफर करने के समय, वो रेल का कोई उसमें दोष नहीं था लेकिन सीट नहीं थी, उसकी वजह से उनको सफर करने के समय काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उससे चिंतित होकर हमने फौरन उसका निर्णय किया। आपने देखा होगा कुछ दिनों में ही हमने परिवर्तन किया है ये खबर आने के बाद। और इसीलिए ये भी आज एक नई सुविधा दी जा रही है। मुझे विश्वास है इससे भी लाभ होगा। और आपको जानकारी के लिए कहता हूं कि हम 40,000 कोचिस रेलवे के, यानी करीबन 85% ऑलमोस्ट जो कोचिस है उसको पूरी मात्रा में रिट्रोफिट कर रहे हैं। और रिट्रोफिट करने के टाइम जो एक्सेसिबिलिटी के जो इश्यूज है, तो दिव्यांग लोगों को रेल में सफर करने के समय जो भी कठिनाई आती है, टॉयलेट्स में भी, ये सभी के ऊपर हम काम कर रहे हैं। लेकिन उसके जब काम हो रहा है तब तक ये रिजर्वेशन की एक बहुत बड़ी समस्या आज हल हो जाएगी। ये सब करने के लिए ये सब खर्चे की बात है जो भी अब मैं बता रहा था कि एलिवेटर लगाना है, ऐप बनाना है, ये सभी चीज़ों के ऊपर। वैसे ऐप में सही मायने में हम प्लानिंग करेंगे तो उससे नॉन फेयर रेवेन्यू भी बढ़ेगा, ये हमारी उम्मीद है। जो सॉफ्ट असेट है ऐप के द्वारा, उससे जो हमें एक कैप्टिव ऑडियंस मिलेगा उसको भी हम मोनिटाइज करेंगे। लेकिन फिर भी एक खर्चे की बात है। तो आमदनी बढ़ाने के लिए 3 जन यहाँ पर मौजूद है, हमारे 3 पार्टनर्स, एक अल्ट्राटेक, इंडिया सीमेंट, और अभी वो टिस्को का नाम काफी पहले बदल गया, अभी टाटा स्टील हो गया। तो मैं टिस्को देख रहा था, वो नाम बदल के टाटा स्टील बन गया, सही है ना।
तो ये 3 कंपनियां आज उनके साथ में लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स की गई है। आपको मालूम होगा ये भी बात बजट स्पीच में कही थी कि हमारी ये कोशिश रहेगी कि कोई भी कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों को भी एक टॉप लाइन बॉटम लाइन की हमेशा चिंता रहती है, क्वार्टर रिपोर्ट देना होता है, तो वो भी समझते हैं कि क्या कॉस्ट का प्रोजेक्शन क्या होगा समझना चाहिए। हम लगातार रेल के किराए में कम ज़्यादा करेंगे तो उनको भी परेशानी होती है। इसके लिए लॉन्ग टर्म बेसिस पे उनको यदि ये पता चले कि कितनी फ्रेट कॉस्ट रहेगी और ये जानने के लिए हम लोगों ने लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करने की जो शुरुआत की उसको भी आज 3 कंपनीज बड़ी कंपनी है उनके साथ भी कॉन्टैक्ट किया जा रहा है। मुझे लगता है आगे आने वाले दिनों में हम और काफ़ी और मुझे लगता है 7-8-10 कंपनियों से बातचीत भी चल रही है, तो आने वाले दिनों में ये भी हम और ज़्यादा कंपनी के साथ में भी एग्रीमेंट करेंगे। और आपने देखा है ये विन विन सिचुएशन है, ये ट्रैफिक रोड में जाने वाला था या रोड या हमारे पास आने वाला ही नहीं था, ये ट्रैफिक हमारे पास आएगा, कंपनियों को भी थोड़ी राहत मिलेगी, हमें भी उसका लाभ होगा। तो मैं मानता हूँ ये भी हमारे लिए एक अच्छी चीज़ है। और जो ड्रॉप कंटेनर का डिज़ाइन चेंज करके भी हम लोगों ने जो नई पॉलिसी की है, आपको पता होगा कि सिर्फ आज के तारीख में 42% रेल की जो पूरा नेटवर्क है उसका विद्युतीकरण हुआ है। हम लोगों ने पहले ही निर्णय कर चुके हैं कि आने वाले अगले 5 सालों में हम लोग उसको बढ़ाकर डबल करेंगे, यानी 42% का बढ़ाकर 85% तक करीबन जाएगा। और साथ ही में जितने भी मीटर गेज लाइन है उसको हमने ब्रॉडगेज में कन्वर्ट करने का भी डिसीजन लिया है। तो जो ब्रॉडगेज कन्वर्ट होगा तो ऑटोमेटिकली वो भी इलेक्ट्रीफाई किया जाएगा, यानी करीबन सब लाइन इलेक्ट्रीफाई कुछ आने वाले सालों में होगी। उस समय ये कठिनाई आ सकती है कि पास कैसे होगा कंटेनर, इसीलिए हमने आज ही सोचकर उसके बारे में निर्णय किया और ये सभी के लिए अच्छी बात है। फ्यूल कंजम्पशन भी कम होगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट वही रहेगी, उसी कॉस्ट में और ज़्यादा कंटेंट ज़्यादा ट्रैफिक हैंडल होगा, जो हमारे कस्टमर्स है उनके लिए भी लाभ होगा और रेल के लिए भी आमदनी बढ़ेगी। इसलिए ये भी एक नई शुरुआत की जा रही है। तो आपने देखा होगा पिछले कुछ 1.5-2 सालों में लगातार हम लोग फ्रेट में रिफॉर्म ला रहे हैं ताकि वॉल्यूम्स बढ़े। वॉल्यूम बढ़ेगा तो आने वाले दिनों में टोटल रेवेन्यू भी बढ़ेगी। टोटल रेवेन्यू बढ़ने से रेल की आमदनी में जरूर बढ़ोतरी होगी और ज़्यादा निवेश करने के लिए भी हमारे पास धन मिलेगा। आज 2/3 हमारी जो आमदनी है वो आती है फ्रेट से, लेकिन हमारा जो नोडल शेयर था वो पिछले 70 साल में लगातार गिर रहा था। हम अभी उसको बढ़ाने की कोशिश करें और हमारी उम्मीद है कि अगले कुछ सालों में 45% तक